Good morning everyone. Welcome to our channel RDS Group class. As you know that yesterday we have started our chapter noun and you all have learned yesterday the definition of noun in one line and in so let us move forward and yesterday I have told you that what is noun. Okay, so you all knew now. No, now just people, places, animal, things are noun. And I have also told you yesterday I have done some mistakes, but today I have corrected them. As I have written the chapter name wrong, now it is correct. And this was not a mistake actually. In higher classes, it has one more part. Okay, concrete noun, but in your syllabus or in your book only 4 types of noun, and I have asked question. Actually I have explained very clearly each and everything yesterday, but you have not given reply. And if you have given reply after the period, then it doesn't matter. ये मैटर ही नहीं करता है. अगर आपने पीरियड के बाद में वो दिया है तो मैं अदर टीचर के पीरियड में जा कर के नहीं अपना क्वेश्चन देखूंगी. सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड that if you want to give reply, then give in your time. As you all know that our period timing is till 9:40. So after that there is no matter. Okay, so come to our topic again. I will repeat my topic, that what is noun. Naming words are known as noun, or we can say nouns are the name of people, place, animal or things. As you can see here are people, places, animal and thing, and when we add these things it will become noun. Clear? Second thing is that I have told you noun can be various type of. There are 4 types of nouns. So it can be proper noun, common noun, abstract noun and collective noun. And yesterday I have also described the proper noun in book. So let us move forward to the notebook. Okay, so leave all these things, and in book I have explained till this. Okay, a proper and common noun I have explained in your book. Okay, let us move to our notebook work. Now our first heading is common noun. What is common noun? Listen very carefully. A common noun is a word used for identifying a class of person, animal, place or thing. It means that it आइडेंटिफाई द क्लास बताता है किसी भी पर्सन का, किसी भी एनिमल का. दैट मीन्स उस क्लास में उसी कैटेगरी की चीज़ें आएंगी. सपोज आई हैव टोल्ड दैट एनिमल, I have told animal, so you can say cow, buffalo, dog, cat, rat. Okay, so these all are animals. If we talk about the person, you can say man, woman, girl, boy, Aman, Nishant. Okay, so एक क्लास और कम्युनिटी की बात होती है और उस क्लास में उसी रेंज के लोग आते हैं, उसी कैटेगरी के लोग आते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, कॉमन नाउन होता है. जैसे कि मैन है तो मैन कोई भी हो सकता है, उसका एक नाम होता है, पर अगर हमने मैन कह दिया इट शोज़ अ कम्युनिटी कि मैन है, मैन कोई भी हो, तो वो क्या हो जाता है, कॉमन नाउन हो जाता है. वुमेन, कोई भी वुमेन हो सकती है, एक कम्युनिटी को शो करिए, क्लास को शो करिए, तो वुमेन हो जाएगी कॉमन नाउन. ओके, देन डॉग, गार्डन. कभी जब डॉग को हम नेम दे देते हैं कोई, तो वो ऐसे अगर हम एनिमल और डॉग की बात करते हैं तो यहाँ पे एनिमल आपका कॉमन नाउन हो जाएगा और डॉग आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा. लेकिन अगर हम कहीं पे डॉग और उसके नेम की बात करें तो जो उसका पर्टिकुलर नेम है तो वो प्रॉपर में जाएगा, बट डॉग आपका कॉमन नाउन में आ जाएगा. ठीक है, इसके भी 2 रीजन्स होते हैं. आप ये बोल सकते हो किस भी आप में पूछा गया है. देन गार्डन, सिटी. अब गार्डन कौन सा है वो प्रॉपर में आएगा, सिटी कौन सी है वो प्रॉपर में आएगा. बट ये अब जैसे मतलब कहने का मतलब है, जैसे मैंने कहा क्लास, अगर मैंने क्लास कह दी तो क्लास अब वो कोई भी हो सकती है तो वो कॉमन में आएगी. मैंने कहा बैंक, बैंक कोई भी हो सकता है, तो जब हम उसका नाम पर्टिकुलर दे देंगे तो अलग बात होगी. अदरवाइज वो बैंक किस में आएगी, स्कूल किस में आएगा. दीज ऑल कम इन common noun. तो common noun is a noun that identifying a class or community. Clear? Now proper noun. अभी हम आपको इसका डिफरेंस बताएंगे.
ओके, नेक्स्ट प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होता है? अ प्रॉपर नाउन इज द एक्चुअल नेम ऑफ अ पर्सन. जो प्रॉपर नाउन होता है वो एक्चुअल नेम होता है किसी भी पर्सन का, ठीक है, एक स्पेसिफिक नेम. व्हेन वी विल गिव अ स्पेसिफिक नेम टू समवन, दैट इज नोन एज प्रॉपर नाउन. ओके, सो अ प्रॉपर नाउन इज द एक्चुअल नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. किसी भी प्लेस को हम किसी भी पर्सन को, सपोज मैंने उसका नेम दे दिया अमन, तो पर्सन क्या हो गया? प्रॉपर नाउन. एनिमल को मैंने नेम दे दिया, उसका नाम मैंने लिख दी, सपोज रख दिया टफ़ी, तो टफ़ी क्या हो गया? यहाँ पर प्रॉपर नाउन हो गया. ठीक है, अब इसी तरह से मैंने जैसे बोल दिया प्लेस, प्लेस मैंने बोल दिया जैसे कि जेड स्क्वायर मॉल, ये भी एक जगह है. ताजमहल, ये भी एक जगह है, तो ये किस में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में. और इसी तरह मैंने थिंग बोल दी, तो थिंग कोई भी हो सकती है. बैट, ठीक है, बैट है या बैग है, बॉक्स है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा. तो स्पेशल नेम्स आर नोन एज प्रॉपर नाउन. जिनके स्पेशल नेम्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रॉपर नाउन कहलाते हैं. नेक्स्ट वी कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. सो यू कैन सी कॉमन नाउन जैसे बॉय. अब इसी बॉय का जो प्रॉपर नाउन होगा वो क्या हो जाएगा? रोहन. प्रॉपर नाउन फॉर द बॉय इज रोहन. सो बॉय इज अ कॉमन नाउन एंड रोहन इज अ प्रॉपर नाउन. देन नेक्स्ट गर्ल. गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन क्योंकि गर्ल कोई भी हो सकती है, ठीक है, एक क्लास को ये आइडेंटिफाई कर रही है. लेकिन रीता, रीता इज़ अ नेम ऑफ अ गर्ल, सो रीता एक स्पेसिफिक नेम है. देन वी यूज़ इट एज अ प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट स्कूल. स्कूल किसी भी हम स्कूल की बात करते हैं, अभी हमें नहीं पता कि कौन सा स्कूल है, तो कॉमन नाउन. एंड व्हेन वी गिव अ नेम टू इट दैट मीन्स RDS, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? प्रॉपर. ये देखिए सारे प्रॉपर के एग्जाम्पल है और ये सारे कॉमन के एग्जाम्पल. अब कैट. अब कैट कोई सी भी हो सकती है. मैंने कैट का नाम दे दिया किट्टू, तो किट्टू क्या हो जाएगी? किट्टू इज़ अ प्रॉपर नाउन एंड कैट इज़ अ कॉमन नाउन. ओके, लेकिन अगर हम एनिमल और कैट की बात करते हैं तो एनिमल हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा और कैट हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि एनिमल एक कम्युनिटी को बता रहे हैं और जो कैट है वो उसका एक पार्ट है. ठीक है, सो now you can see the difference between common noun. That means when we talk about a specific name then it is a proper noun, and when we talk about a community or a caste that it is known as, एक class की हम बात करते हैं और a class, then it is known as common noun. Next, see the difference between common and proper noun. Now you can see the difference. What is the difference between a common noun and proper noun? So common noun जो होता है यूज फॉर जनरल नेम्स, जनरल नेम के लिए यूज होता है. डजंट बैगिन विद कैपिटल लेटर. देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट अ कॉमन नाउन. यूज फॉर जनरल नेम, जनरल नेम के लिए यूज करते हैं. एंड डजंट बैगिन विद द कैपिटल लेटर, और ये कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट यू कैन सी प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन यूज फॉर स्पेशल नेम. जो प्रॉपर नाउन होता है ये यूज़ किया जाता है स्पेशल नेम के लिए और बैगिन विद द कैपिटल लेटर. ठीक है, नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. सो नाउ इट इज़ क्लियर व्हाट इज कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. लेट अस मूव फॉरवर्ड अवर बुक. ओके, सो लेट अस सी द बुक एक्सरसाइज नंबर 1. yesterday I have explained this term that sun, moon, earth are used in both, and in both you know that this is used, sun, moon and earth both are used in common noun and proper noun both. Let us see. Consider the sentences. Read. The sun is a star. The sun's rays come in through the window. First you listen the sentences very carefully, then I will explain what I am saying. The moon is the earth's satellite. The earth has 2 poles. I like the smell of fresh earth. Now what is the explanation given here? Thus we write sun, moon and earth beginning with the capital letters when we are talking about the star, satellite and planet respectively. So जब हम सन, मून और अर्थ को beginning में लिखते हैं then we use as a capital letter, and when we are talking about the star, satellite and planet, next these are used as a common noun when they are being referred to in general and not the planets, star or satellite. First most important thing is that when we use it as a common noun, okay, when we use these sun, star and moons as a common noun, they being referred
टू इन जनरल, अगर ये जनरल है तो हम इनको एज अ कॉमन नाउन यूज़ करते हैं, एंड नॉट द प्लेनेट्स, स्टार और सैटेलाइट्स, प्लेनेट, स्टार, सैटेलाइट को नहीं। दैट इज क्लियर। सो इसमें से इन्होंने कहा सन, सन क्या है, सन एक स्टार है, सन इज अ स्टार, द सन्स रेज कम इन थ्रू द विंडो, सन की रेज कहाँ आती हैं, विंडो में आती हैं। अब आप देखिए जब हमने इसको स्पेसिफिक इसके लिए बात की कि मैंने सन को ही बताया है, ठीक है, स्पेसिफिक बात की तो इसको मैंने एज अ कैपिटल यूज़ किया, लेकिन जब मैंने इसको एज अ जनरली यूज़ किया, दैट मीन्स सन्स रेज, सन्स की पर्टिकुलर बात नहीं की, वी आर टॉकिंग अबाउट द सन्स रेज, तो अब ये यहाँ पे एज अ कॉमन नेम नाउन यूज़ हुआ है। नेक्स्ट यू कैन सी द मून इज द अर्थ सैटेलाइट, मून किसका सैटेलाइट है, अर्थ का एक सैटेलाइट है, तो हेयर मून इज यूज एज अ proper noun, but when we talk the earth has 2 poles, it's also a proper noun. Then I like the smell of fresh earth, here it is used as a common noun. Let us see the abstract noun. Abstract nouns expresses state, ideas, concept, feeling or qualities that cannot be seen or touched but can be felt as experienced. So first thing is that what is abstract noun? Abstract noun is a noun that we can feel, we can it is idea, concept, feeling or qualities, we cannot see, we cannot touch it, only we can feel it. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हम ना उन्हें छू सकते हैं ना हम उन्हें आंखों से देख सकते हैं, दैट आर नोन एज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो सारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, जो खुशी होती है उसको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ हम फील कर सकते हैं कि हम कितने खुश हैं, ठीक है। और सेकेंड थिंग जैसे सॉरो, ग्रीफ, हमारा दुख होता है, ठीक है, उसको हम नाप नहीं सकते हैं, मेज़र नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसको हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ना हम उसे देख सकते हैं ना हम उसे टच कर सकते हैं। किसी के दुख को आप टच कर सकते हो नहीं। लव जो होता है, लव कितना है आपको वो आप सिर्फ फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, लव दिखाई नहीं देता। हाँ, लव करने के लिए जो हम चीज़ें करते हैं वो हमारे एक्शंस दिखाई दे सकते हैं, बट वी कांट सी द लव, हमें लव नहीं दिखाई देता है, ठीक है। सो दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो स्टेट, जैसे कि इन्होंने कहा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती हैं, स्टेट, आइडियाज, कंसेप्ट, फीलिंग्स एंड क्वालिटीज़। हेयर आर गिवन द एग्जांपल ऑफ स्टेट। स्टेट में क्या आती है, स्टेट मीन्स होता है किसी चीज़ की अवस्थाएं जो होती हैं, जैसे कॉन्शियसनेस, होप, ह्यूमर, इंसैनिटी, मैच्योरिटी, चाइल्डहुड, मैनहुड, वुमेनहुड, दीज ऑल आर स्टेट। स्टेट मीन्स होता है अवस्था, ओके। जैसे एडल्टनेस होती है, चाइल्डहुड होता है, दीज ऑल स्टेट। क्वालिटी क्या होती है, किसी की क्वालिटी जो होती हैं, ठीक है, जैसे ब्यूटी, ब्रेवरी, काम, चैरिटी, कॉन्फिडेंस, करेज, क्यूरियोसिटी, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, एलिगेंस, इंथुजियाज्म, एविल, फियर, जेनरसिटी, पेशेंस, परसिवेरेंस, गुडनेस, ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी, integrity, intelligence and wisdom, wit. These are the qualities that comes in abstract noun. Next one is feeling. Feeling क्या होती है, what are the feeling, जैसे hatred, love, honor, jealousy, kindness, loyalty, these all are the feeling. So in abstract noun we all learn about the states, qualities and feeling. These all come in the abstract noun. And the last one is collective noun. As you have seen 4 types of noun according to your syllabus: common noun, proper noun, collective noun and abstract noun. So I have already explained common and proper and abstract noun. Now come to the collective noun. In collective noun, a collective noun denotes a group of individual. If we talk about a group, then it is known as the collective noun. collective noun किसी भी चीज़ का ग्रुप होता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, फ्लोर का भी वो बंच हो सकता है, की का बंच हो सकता है, ग्रैप्स का बंच हो सकता है, या स्टूडेंट्स का ग्रुप हो सकता है, टीचर्स का ग्रुप हो सकता है, और जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका ग्रुप हो सकता है, ठीक है, लॉयर का ग्रुप हो सकता है, कोई किसी भी चीज़ का ग्रुप ऑफ एनीथिंग इज नोन एज, बस ग्रुप होना चाहिए। कलेक्शन ऑफ एनीथिंग इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। सो आ कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एज अ रो ऑफ बुक। जो बुक के लिए हम यूज़ करते हैं कलेक्टिव नाउन, वो क्या होता है, a row of book, और इसी के लिए a row of houses, a row of trees,
दैट मीन्स इन बुक्स, हाउस और ट्रीज, इनके लिए जो एक कलेक्टिव नाउन यूज होगा, दिस इज अ रो, अ रो ऑफ books, a row of houses, a row of trees. Next, a swarm of ants, a swarm of flies, a swarm of bees. That means for ants, flies and bees we can use swarm. Next है a pack of wolves. और भी pack बहुत से उसके लिए यूज होता है, मैं आपको लिखाऊंगी आगे. अभी जितना है आपकी बुक में, बंच ऑफ कीज. अब बंच किसका होता है? कीज का, फ्लावर्स का, ग्रैप्स का, बनानास का. अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, स्टेयर्स का जो होता है उसको बोलते हैं फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स. अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, ट्रीज के लिए हम रो ऑफ ट्रीज भी बोल सकते हैं, क्लम्प ऑफ ट्रीज भी बोल सकते हैं. एंड फॉर स्टोरीज एंड पोएम, एंड एंथोलॉजी ऑफ स्टोरीज एंड एंथोलॉजी ऑफ पोएम. सो इन दिस वे वी कैन यूज collective noun. So here I have explained all the nouns. So tomorrow I will continue this in descriptive way. Okay, today I have explained abstract and collective noun in your book, and tomorrow I will explain this in your notebook. That is clear to all of you? Okay, so this is enough for the today. Thank you for watching the video. Thank you and have a nice day.